Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 7, dear students, I hope you all are fine. I'm also fine. Okay, so now we are going to start today our second lecture of General Science chapter number 2. Okay, so now we are going to start further about the plants. In your first lecture of chapter number 2, you have learned about the plants and the structure of the plants. It means their roots, shoots, leaves, and also you have learned about the bird. So now we are further going to discuss the chapter number 2. So dear students, I hope you all are learning very well. If you have any difficulty, you may ask. So now today's our topic is tissues and organs. As you all know that cells combine to form tissues. ठीक है, सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, सेल्स कंबाइन होकर बनाते हैं टिश्यूज़. ठीक है, और ये टिश्यूज़ जो है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन होकर बनाते हैं ऑर्गन. ओके, अगर मैं आपको अपनी ह्यूमन्स बॉडी में एग्जांपल दूं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर ये हैंड है, ये एक हाथ है. ठीक है, ये क्या है, ये एक ऑर्गन है. ठीक है, अगर मैं आपको जो है वो किसी भी बॉडी पार्ट का एग्जांपल ले लें, आई ले लें, नोज़ ले लें, ठीक है, तो ये सारे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं. ठीक है, अब ये ऑर्गन सारे बनते हैं तभी बनता है एक ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक इंसान. तो प्लांट को भी आप एक इंसान ही समझें. ठीक है, लेकिन ये किसी दूसरे किस्म का इंसान है. इसमें भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मिलकर बनाते हैं इस प्लांट को. अब वो ऑर्गन जो प्लांट को जाकर बनाते हैं वो होते हैं, लीफ हो गया. ठीक है, लीफ क्या है, लीफ प्लांट का ऑर्गन है. ठीक है, उसके बाद आप दूसरे ऑर्गन देखें, रूट्स, स्टेम, ठीक है, मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं. ये सारे ऑर्गन्स हैं जो मिलकर बनाते हैं एक प्लांट को. ठीक है, अंडरस्टैंड, these all organs make an organism, and organism is plant because you are learn about the plant. So now I will tell what are the organs and what is the function of these organs. Okay, so organs combine to form an organism. Okay, organism is something that able to survive its own. We are surviving it our own because we have our digestive system, our heart, our all body organs, liver, and all systems. So in plants also these organs make the plants is able to survive on its ऑन सेल्फ. इट मीन्स के प्लांट्स के भी जो ऑर्गन्स होते हैं ये इसको एबल करते हैं कि ये खुद ही जो है वो सर्वाइव कर सके. ठीक है, so for example we are taking the example of leaf. Okay, so what is this is a leaf. Look at this is a leaf. Okay, so now what is the function of this leaf, what is the job of this leaf. Leaf is an organ of a plant. Okay, this is a plant and this is a plant leaf. Okay, now look at this leaf is a plant organ. Okay, and its job is to make food by photosynthesis. लीव किस तरह फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए लीव क्या करता है, फूड बनाता है. ठीक है, अब लीव खुद बना हुआ है डिफरेंट टिश्यूज़ का. ठीक है, लीव के अंदर जो टिश्यू होता है, कौन सा टिश्यू होता है लीव के अंदर, प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जो कि लीव को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है. ओके, लुक एट इनसाइड द लीव हैव this photosynthetic tissue. With the help of photosynthetic tissue leaf can make food. Leaf has xylem, leaf has phloem, so these all are the parts. So trees, अगर हम trees की बात करें तो trees are the longest living organism on the earth. ज़मीन पे longest जो living organism हैं वो कौन से हैं, वो हैं trees. Okay, now students, I'm going to tell you further about the organ. Root is also an organ of the plant. In your previous lecture you have learned the job of root. What is the function of root? Root hold the plant in the ground and also they take water and minerals from the soil.
और ये कहाँ पे पहुँचाते हैं, यहाँ पे टिप्स पे जो प्लांट की टिप्स है वहाँ तक इसको पहुँचाते हैं। एंड दिस इज ए स्टेम, दिस इज व्हाट, दिस इज ए स्टेम। स्टेम का काम ये होता है कि ये प्लांट को अपराइट जो है वो खड़ा करके रखती है, ठीक है, ऊपर करके क्या करती है, खड़ा करके रखती है ताकि लीव जो है वो सनलाइट ले सके, ठीक है। और मेल एंड फीमेल दोनों आपको रिप्रोडक्टिव आर्गन का पता है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम बोलते हैं स्टैमेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को हम बोलते हैं कार्पेल। यू हैव टू रिमेंबर द रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ ह्यूमन मेल इज कॉल्ड स्टैमेन एंड रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड कार्पेल। These are the reproductive organs and they both are present on one flower. Each flower contain the both stamen and carpel. Okay, and these flowers, look at these flowers. They are हम ये कैसे नज़र आ रहे हैं, ब्राइटली कलर्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। वाई दे आर लुकिंग एज अ ब्राइटली कलर्ड, बिकॉज दे हैव टू अट्रैक्ट द insects and insects can help the plants in pollination. Now we are going to start a next topic called the transport in plants. So how the transport in plants take place? If we are taking the example of human body, in our body there is a blood, and what is the function of blood? Blood helps in transporting the different materials. Like plants also have the transport system. So roots and stems are the plant's organ which contain the transport system. Okay, so they have the thin tubes. ओके, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, रूट्स में थिन ट्यूब्स होते हैं जो कि लिक्विड्स और को क्या करते हैं, कैरी करके जाते हैं प्लांट की तरफ, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, नंबर 1 जाइलम एंड नंबर 2 फ्लोएम. Xylem and phloem. In your previous lecture you have learned about the xylem and phloem. Xylem is what, water conducting tissue, and phloem is food conducting tissue, and these both are collectively called vascular tissue. Okay, so vascular tissue are xylem and phloem. Xylem and phloem are collectively called vascular tissue. What is the function of xylem? Xylem carry waters, minerals, solution from the soil up to the parts of the plant above the ground. जाइलम का काम ये होता है कि ये ऊपर जितना भी प्लांट का पार्ट होता है वहाँ तक क्या करता है, जो है वो वाटर वगैरह पहुँचाता है, ठीक है। यानी कि जाइलम सपोर्ट करता है किसको, प्लांट को। लेकिन नंबर 1 थिंग यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू. Xylem is a dead tissue. Okay, xylem is a dead tissue, while phloem is a living tissue. Why these are called living and dead tissues? Because in the plant trees, अगर हम ट्री की एक की बात करें तो हर साल क्या होता है, एक न्यू जो है वो यहाँ पे रिंग आ जाती है, जिसकी वजह से हम प्लांट की एज भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में क्या होता है, ट्रीज में ये जो जाइलम है ये बना हुआ होता है, मेडअप हर साल न्यू रिंग्स बनाता है, ठीक है। और ये जो है मतलब न्यू वुड में, और फिर ये जो पुराना होता है वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू, ठीक है। जो जाइलम वर्ड है ये ग्रीक वर्ड जाइलोन से लिया गया है, जिसका मतलब है वुड, यानी कि जो ये वुडी पार्ट है प्लांट का, इसको हम बोलते हैं जाइलम, ठीक है। अब फ्लोएम सेल्स अलाइव होते हैं, ठीक है, जाइलम सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं। फ्लोएम ट्यूब जो होते हैं ये बने हुए होते हैं लिविंग सेल के, ठीक है। इनका काम ये होता है कि ये फूड पहुंचाते हैं। अब फूड प्लांट का कौन सा फूड होता है प्लांट का, जैसे कि कोई शुगर सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। अब ये लीव्स में से शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के बनते हैं के ज़रिए बने। अब ये देखें कि ये लीव के अंदर जो कुछ भी बना, ठीक है, ये पूरे प्लांट के जितने भी ऑर्गन हैं उनके पास ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा, ठीक है। क्या होकर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होकर ये जो है वो जाएगा। अब ये जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू है, ठीक है, ये बंडल आपस में बंडल्स की तरह जो है वो होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर बंडल्स, ठीक है। अब देखिए
ये रूट, दिस इज अ रूट, दिस इज अ रूट, लुक एट केयरफुली, दिस इज अ रूट। रूट्स में ये हेयर्स है, ठीक है। रूट्स हेयर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द वाटर। रूट्स का काम क्या होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, दिस इज ए इनसाइड अ रूट, वाटर, मिनरल। अब ये सारे जो हैं ये कहाँ जा रहे हैं, ट्यूब्स में से स्टेम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और जो शुगर है वो लीव में से मूव होकर कहाँ पे जा रही है, फ्लोएम ट्यूब्स के ऊपर जो है वो जा रही है। ये रूट हेयर है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को सॉइल तक जो है वो ले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ग्रोइंग टिप होती है जो कि क्या करती है, इस रूट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रोइंग टिप? Growing the root is the growing tip which help is to protect the root cap. Its function is to protect the root cap. So here is the question, what is the job of the root cap? So the function of root cap is protect the growing root tip. So dear students, your homework is you have to solve exercise number 2 of book page number 16. Okay, what is an organ? Name 3 plant organs and say what is say what each one does. And exercise number 3, what is transport system? What is a vascular bundle? Okay, so these 6 questions and also these 2 questions, this is your homework of book page number 16 and book page number 17. I hope you have learned. Dear students, if you have any difficulty, you may ask. Okay, one thing I am going to explaining again. So that is transport. अब मैंने आपको समझाया कि ट्रांसपोर्ट का काम ये होता है कि लीव में से ये टिश्यूज़ क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फूड या वाटर को लेकर, यानी कि मिनरल्स को लेकर जाते हैं। हम में भी यही होता है, हम में भी जिस तरह देखिए गाड़ी में हम बैठते हैं, वो गाड़ी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, ठीक है। तो इसी तरह ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हमारी बॉडी के भी अंदर होता है, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम ये होता है कि वो फूड हमारी बॉडी में, ज़ाहिर बात है किसकी फूड जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होगी, फूड की होगी, मिनरल्स की होगी, ब्लड की होगी, तो इन सारी चीज़ों की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।